In this section we are started with electrical machines. As we know that there are various machines, some of them are called static and some of them are called dynamic. For example, if you see motors, generators, these are moving machines, but some other types of machine which are not which do not having any moving part and they are static, means they are stable. So these machines are called static machines. And the example of static machines we are starting with are transformers. In all the static machines we have only one example, which is transformer. Otherwise all the machines are dynamic. For example, your induction machines, DC machines, synchronous machines, all are dynamic in nature. So starting with transformer, I have a general diagram of a transformer. You people might have seen that in your local areas, because these transformers are used to supply energy to the household or to the buildings, to the industries, as well as to the institutions also. If you see the cut section of a transformer, you will find that there are fins come out from the transformer just like this. This is the structured part. Why these fins are there? Because transformer when works, it provide various losses due to which there is a production of heat is there, and to lose heat from the transformer to the environment, you people might know that if we increases the surface area of anything, it will lead to the heat loss. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी मदर्स हैं, जैसे गिलास में क्या दूध देती हैं, अगर दूध गर्म हो तो क्या करते हैं, हम थाली में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, एज मच द सरफेस एरिया इज द लॉस ऑफ इट इज दैट मच. सो इन दिस केस these fins are used to increase the surface area of the system, by which the warm oil will flow and lose the heat, and it gets circulated inside the container in which your transformer is placed. Here we have different things like low voltage bushings. These are the bushings. You people have might seen that there are 3 bushing at the high voltage side and there are only 4 bushes on the low voltage side, because low voltage side is the side in which the distribution is there, and in case of distribution we need to have a neutral. Therefore 4 bushing are there, R, Y, V, 3 फेज के लिए, और चौथा किसके लिए, न्यूट्रल के लिए. और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, वी हैव 2 कॉइल्स एंड वेयर आर दी कॉइल, दीज आर वाइंडिंग्स, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी. उसमें क्या है, जो जनरल आपका जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या होता है, ये हमारी कोर है, दिस इज अवर कोर, और इस कोर के ऊपर क्या किया हमने, 2 वाइंडिंग्स की हैं, एक नीचे जो आपके पिंक कलर में नज़र आ रही है और एक उसके ऊपर. मीन्स this winding is called low voltage winding. The winding which is with the core is called low voltage winding, and the winding above the low voltage winding is called high voltage winding. This is the actual transformer which we use, but for the notations we use the transformer structure as we discussed earlier in the previous lectures. About the introduction of transformer, we can say that a transformer is one of the most useful electrical devices ever invented. No matter for what the electricity is used, all the electricity is supplied through a transformer only. Means जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दुनिया में है वो ट्रांसफार्मर से होके ही गुजरती है. It can change the magnitude of alternating voltage or current from one value to another.
इसके बारे में हमने बात की थी कि ये मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिवाइड द ट्रांसफॉर्मर एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर हैव नो मूविंग पार्ट, रजड, ड्यूरेबल इन कंस्ट्रक्शन. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात भी की कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, दैट मीन्स इट हैव नो मूविंग पार्ट. नेक्स्ट वी हैव, they also have a very high efficiency of 99%. This is all about distribution transformer. It essentially consists of two windings. One is called as primary winding and one is called as secondary winding, and wound on a common laminated magnetic core. और यह है एक मैग्नेटिक कोर पे आपकी लो वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों की जाती हैं, और इसको प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं. अब लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज means number of turns are more, that is high voltage winding. Number of turns are less, this is called low voltage winding. The winding connected to AC source is called as primary, means the source जिसको हमने फीड किया है, जिस वाइंडिंग से हम एनर्जी को दे रहे हैं उसको जनरली प्राइमरी बोला जाता है, और वो लो वोल्टेज भी हो सकती है और हाई वोल्टेज भी हो सकती है. अगर लो वोल्टेज होगी और हाई वोल्टेज सेकेंडरी साइड होगी तो इट इज कॉल्ड एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एंड वाइस वर्सा. और उसको अगर अल्टरनेट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स. जनरल जो नोटेशन है आपको बुक्स में मिलेगा, ट्रांसफॉर्मर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखेगा आपको कि आपको क्या ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, मीन्स एक वोल्टेज वाइंडिंग ये है, दूसरी वोल्टेज वाइंडिंग ये है. लेकिन मैंने जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो आपको पहले दिखा चुका है, लेकिन स्टडी के लिए जितना हम यूज़ करते हैं आपको यही देखने को मिलेगा. तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, यू पीपल्स कैन सी देयर आर टू वाइंडिंग्स ऑन ए मैग्नेटिक कोर. दिस इज ए मैग्नेटिक मटेरियल. मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स you can magnetize it, for example iron, silicon, you can magnetize it, and this is for the confinement of a flux. अब इसमें क्या कर दिया है, दो वाइंडिंग को एक इधर रख दिया है. इसको जब सप्लाई दे रहे हैं वी कैन कॉल इट एज प्राइमरी वाइंडिंग और फीडिंग वाइंडिंग. एंड देयर इज ए what is the basic principle we have talk about that, when we provide V1 as the voltage, when we provide V1 as the voltage and there is a flow of current that is I1, there is a production of EMF. आप देख रहे हैं कि I have provided V1 as voltage but there is a production of EMF that is called E1. अगर ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो उसमें V1 किसके बराबर होगा, E1 के बराबर होगा, अगर मैं मानता हूं कि इसके बीच में कोई लॉस नहीं हो गया है बीच में. बट ये जनरली होता नहीं है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि V1 किसके बराबर है, E1 के बराबर है. और ये V1 E1 के बराबर क्यों है, दिस इज बिकॉज V1 E1 के प्रोपोर्शनल क्यों है, बिकॉज सेल्फ इंडक्शन की वजह से. अब हमने क्या किया है, जनरली आपने +2 में पढ़ा होगा कि जब एक सोलेनॉइड के थ्रू क्या करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या करता है, देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ EMF. और EMF जो E है वो किसके अपोजिट होगा, V1 के अपोजिट होगा, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ. किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ. अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इट अपोज द चार्ज विच जनरेटेड. और E1 को प्रोड्यूस किसने किया है, जनरेट किसने किया है, V1 ने. तो लेंज लॉ की वजह से V1 E1 के बराबर होगा, लेकिन कैसे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. मीन्स अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन देना पड़ेगा तो आपको ऐसे डायरेक्शन देना है इस साइड को. और इसकी वजह से क्या होगा, सोलेनॉइड प्रिंसिपल की वजह से क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने करंट दिया है, उसकी वजह से एक फील्ड बनी है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम किसकी बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में किसकी बात करेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा, एक फ्लक्स फ्लो करेगा, वो इस कोर के बीच में फ्लो करेगा. मीन्स उसका पाथ कुछ ऐसे होगा. जब उसका पाथ ऐसे है, उसके बाहर उसके अदर साइड पे क्या है, एक और वाइंडिंग किया गया है. अब इस करंट की वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट हुआ, तो इस फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक करंट और वोल्टेज भी जनरेट होना चाहिए. यही जब यहाँ हुआ तो यहाँ भी होना चाहिए. जब एक बोलने का मतलब है कि अगर करंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है. तो इसी पल की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जब ये मैग्नेटिक, ये क्या करेगा, मैग्नेटाइज्ड जो फ्लक्स है,
फ्लक्स जो फ्लो करेगा इसके बीच में से, देयर इज ए प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। और बोलते हैं कि इफ दिस इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर सेम, तो ईएमएफ जितना E1 पे होगा उतना ही ईएमएफ किस पे होगा, E2 पे होगा, तो उतना ही ईएमएफ जनरेट होगा। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। The alternating voltage V1 is applied to the primary and the induced EMF E2 in the secondary cause a secondary current of I2 to flow. Consequently, the terminal voltage V2 will appear across the load when an alternating voltage V1 is applied to the primary as alternating flux phi is set up in the कोर। अब इसकी वजह से जो मैंने आपको बोला सेल्फ इंडक्शन की वजह से अब ईएमएफ जनरेट कैसे होता है, बिकॉज ई का फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एंड वट इज माइनस साइन इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ की वजह से क्या हुआ, माइनस साइन, बिकॉज वो क्या बता रहा है कि दीज आर इक्वल बट अपोजिट। अब अपोजिट कोई डायरेक्शन जब आप दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल में तो यूज माइनस साइन, तो इट विल शो माइनस साइन एंड ई इज टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, मीन्स जो फ्लक्स है उसको रेट ऑफ चेंज डी टी के साथ में एन वन इज नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने आपको बोला कि जो ई एम एफ है प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो ई एम एफ प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो ई एम एफ प्रोड्यूस कम होगा। सेम ई टू पे भी is equal to minus n2 d phi by dt and e2 upon e1 is equal to n2 upon n1. Number of turns on the primary is n1 and that secondary is n2. n1 n2 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी पे और नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी पे। some of the books will tell you about t1 and t2. You can take the notations by your own self, and magnitude of E2 and E1 depend upon the number of turns on the secondary and primary respectively. Points to be noted, there are some points. Point number 1, transformer action is based upon the law of electromagnetic induction, that is self induction and mutual induction is the law of electromagnetic induction. This is the basic law behind both. There is no electrical connection in primary and secondary. You can people see that दो E1 है और E2 है जहाँ जनरेट हुआ है, प्राइमरी के और सेकेंडरी के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। देयर इज ओनली ए मैग्नेटिक पाथ बिटवीन देम, बट जो अब वायर कनेक्शन है वो नहीं है। द एसी पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, दैट इज आउटपुट पावर हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज इनपुट पावर। द लॉस सीज दैट अगर ट्रांसफॉर्मर आर, जो आपके ट्रांसफॉर्मर में हम बात कर रहे हैं लॉसेस की, वो दो तरह के लॉसेस हो सकते हैं। वन इज योर कोर लॉसेस, बिकॉज हमारे पास पार्ट ही दो हैं। जो ट्रांसफॉर्मर है स्ट्रक्चर आपने देखा उसमें दो ही पार्ट है, एक है वाइंडिंग पार्ट, एक है कोर पार्ट। एक जो कोर पार्ट है उसमें दो तरह के लॉसेस होते हैं, दैट इज एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। एंड सेकेंड इज योर कॉपर लॉसेस, उसके जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपका वाइंडिंग है उसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। जो ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से है, द कोर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील हैविंग लो हिस्टेरिसिस लूप एंड हाई परमिएबिलिटी। अब ये क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर में दो तरह के लॉस होते हैं, कौन से, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। जो हिस्टेरिसिस लॉस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल ऑफ द कोर, मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। अब हर जो मटेरियल है आपके पास, जितने मटेरियल हैं सबका क्या है, BH कर्व है। जिसका जितना नैरो BH कर्व होगा वो उतना अच्छा मटेरियल होगा किसके लिए, कोर के लिए। बिकॉज जिस भी मटेरियल का जितना नैरो BH कर्व होता है वो उतना ही हाई परमिएबल होता है। व्हाट इज हाई परमिएबल, अगर आपसे पूछा जाए कि परमिएबिलिटी क्या चीज़ है, व्हाट इज परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए it is a property of a metal, or you can say that property of a metal by which it allow itself to be magnetized। ये किसी चीज़ की प्रॉपर्टी होती है जो उसको अलाउ करती है कि वो खुद को क्या करे, मैग्नेटाइज। तो हम क्या चाहते हैं कि हम कम से कम एनर्जी में मैग्नेटाइज हो जाएं। तो जो मटेरियल जिसका BH कर्व जितना नैरो होगा वो उतना ही हाई परमिएबल होगा वो, और उतने ही कम उसमें हिस्टेरिसिस लॉसेस होंगे। सेकेंड वन है, कोर इज लैमिनेटेड एंड इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड बाय द थिन कोटिंग ऑफ इंसुलेशन मटेरियल इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। अब बोलता है कि जो एडी करंट लॉसेस होते हैं, जो दूसरी तरह के लॉस में कोर में बता रहा था,
वो किस पे डिपेंड करते हैं? थिकनेस ऑफ द कोर पे। तो हम क्या करते हैं, इसकी थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए उसमें एक सिंगल पीस यूज करने के बजाय छोटी छोटी स्लिट्स यूज करते हैं और उनको आपस में स्टैक करते हैं टू अवॉइड द एडी करंट लॉस। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग प्राइमरी ऑन द लिम्स एंड सेकेंडरी ऑन द अदर हाफ ऑफ द ईच वाइंडिंग ऑन द लिंक टू एंश्योर टाइट कपलिंग बिटवीन टू वाइंडिंग इंट्रोड्यूस फ्लक्स लीकेज। तो बोलते हैं कि अगर एक लिंक पे हम एक वाइंडिंग और दूसरी लिंक पे दूसरी वाइंडिंग रखें, जैसा आपको बुक वाले स्ट्रक्चर में बता रखा है, तो उससे क्या हो जाता है, आपका फ्लक्स जो है लीक हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों वाइंडिंग्स को एक ही इस पे रखते हैं आधा आधा करके। फोर्थ वन इज द वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कैन मिनिमाइज टू रिड्यूस आई स्क्वायर आर लॉसेज। तो जो दूसरी तरह के आर लॉसेज जो वाइंडिंग में होते हैं वो कौन से होते हैं? आई स्क्वायर आर लॉसेज, एंड दे कैन बी मिनिमाइज बाय सेलेक्टिंग ए material having low resistance. अब we have next is types of transformer in manner in which the primary and secondary are used. The transformer can be divided into two main parts. One is core type and one is cell type transformer. The construction of core type and cell type transformer is just like this. The core type transformer, in a core type transformer there is a single path on the magnetic circuit and half of the primary winding and half of the secondary winding are placed around each limb induced. You can say the structure of core type. आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है और इसके बाहर क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। In cell type transformer we have third limbs, that is E type structure. It is also called sandwich structure. इसमें आपको वाइंडिंग ऐसे है और ऐसे भी हो सकता है ऊपर को, उसमें एक लो वोल्टेज फिर हाई वोल्टेज फिर लो वोल्टेज फिर हाई वोल्टेज फिर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। लेकिन ये क्या होगा, सारी वाइंडिंग किस पे रहेगी, सेंट्रल लिम्स पे रहेगी। जनरल यूज ट्रांसफॉर्मर आर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर वी हैव वाइंडिंग। द वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ करंट कैरिंग इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर्स, जो आपका है वो कॉपर और ये भी यूज हो सकता है एल्यूमिनियम समटाइम्स। द वाइंडिंग आर यूजुअली अरेंज कॉन्सेंट्रिकली टू कोर लेग्स, आप ये देख चुके हैं। concentric coils are typically wound over a cylinder and spacer attached to it form to duct between the conductor and cylinder. The flow of liquid through the winding is based upon the natural convection. हाँ, आपको जो फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने एक्चुअल ट्रांसफार्मर का दिखाया, जो वाइंडिंग है वो किसके बीच में रखी जाती है, ऑयल के बीच में, इन केस ऑफ बिग ट्रांसफार्मर। जो ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, तो ऑयल क्या काम करता है, जो हीट है जो जनरेट होती है आई स्क्वायर आर लॉसेज और कोर लॉसेज की वजह से उसको बाहर लेके जाता है हीट को साथ में, और फिन्स की वजह से क्या कर जाता है, हीट को लॉस कर देता है एनवायरनमेंट में। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में जो बहुत से इक्विपमेंट्स हैं, लिक्विड लेवल इंडिकेटर, आपका जो ट्रांसफार्मर का एक टैंक है उसमें क्या होगा, लिक्विड लेवल इंडिकेटर होगा, प्रेशर रिलीफ डिवाइस होगी, लिक्विड टेम्परेचर इंडिकेटर होगा, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होगा। मीन्स एवरी स्टेप ऑन विच द टेम्परेचर राइज इज देयर, उस सब का क्या होगा, इंडिकेटर होगा। Next is accessory and equipment. Sudden pressure relay is sudden or rapid pressure release instead of indicate a quick increase in the internal pressure and can other. एक रिले यूज होगी जो आपको उसके अंदर का प्रेशर बताएगी। डिहाइड्रेटिंग ब्रीदर, ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर वो चीज़ है जिसके थ्रू एयर जो है इनलेट होती है ट्रांसफार्मर के टैंक में, सो दैट आपका जो टेम्परेचर है वो क्या रहे, कंट्रोल रहे। लिक्विड प्रिजर्वेशन सिस्टम, लिक्विड टेम्परेचर इंडिकेटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल लिक्विड। और नेक्स्ट इज योर लिक्विड प्रेशर सिस्टम एंड बकल्स रिले। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर आपका बकल्स रिले। अभी ये हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बकल्स रिले क्या है, इट इज़ द पर्पस ऑफ द बकल्स रिले इज टू डिटेक्ट द फॉल्ट इनसाइड द ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगे उसके को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी रिले यूज होगी, दैट इज कॉल्ड बकल्स रिले। और ये बकल्स रिले कौन सी रिले होती है, इट इज ए गैस एक्चुएटेड रिले। आप यहाँ देख पाएंगे ये बकल्स रिले लगी है। तो बकल्स रिले कैसे काम करेगी, अगर मान लो यहाँ के बीच में कहाँ तुम्हारी वाइंडिंग है, कहीं ये टैंक के भीतर, उसमें कहीं क्या होता है, इंस्टेंट हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप देख रहे होंगे, आपने पानी में देखा होगा, जहाँ इंस्टेंट हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ क्या बनता है, बबल प्रोड्यूस होता है। क्योंकि इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो बबल क्या करेगा, ऊपर आएगा, और क्या करेगा, जो बबल है अगर वो ऊपर आएगा
तो क्या करेगा, उसके अंदर जो बबल के अंदर क्या है, एयर है या गैस है, वो क्या करेगा, इस बकल्स रिले को क्या कर देगा, एक्चुएट कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो उसको पता लग जाएगा कोई इंटरनल फॉल्ट है। और ये बबल कब उठता है, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है फॉल्ट की वजह से। कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, आपको कूलिंग के बारे में जानना है तो द प्रिवेंट ट्रांसफार्मर फ्रॉम कूलिंग, ट्रांसफार्मर जो स्मॉल ट्रांसफार्मर है लेस देन 50 kVA के, उन ट्रांसफार्मर को कैसे कूल जाता है, जनरल यूज सिस्टम है नेचुरल कूलिंग का। और मीडियम साइज ट्रांसफार्मर आर कूल विद ए tank inside which their oil is there. The large transformer external radiator are added to increase the cooling surface of the oil filling tank, and the oil circulates around the transformer are moved through the radiator. रेडिएटर क्या है, जो फिन्स आपने देखी थी वही रेडिएटर है। ऐसा ही रेडिएटर आपके गाड़ियों में भी यूज होता है। समटाइम्स कूलिंग फैंस बिलो एयर ओवर द रेडिएटर टू एक्सेलरेट द कूलिंग प्रोसेस। और दिस इज दिस डायग्राम यू पीपल्स हैव सीन अर्लियर। और ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।